So now I will be taking that, in the curriculum dynamics, there are three domains. One is the curriculum design. Okay, that you have no relation at all. Curriculum design is being done by the NCERT and the other people, they are already involved in it. One is the curriculum pedagogy, transaction, that we have discussed in my first session. And the third is the curriculum evaluation. Okay, that I am now going to discuss right now. Okay, what will be the assessment strategies looking into the NCF 2023 that needs to be implemented across the stages? Yes, this is the assessment strategy. Let us first recollect or recapitulate what NEP 2020 says about approach to assessment. केवल दो पैरा इसमें जो है मेंशन किया गया है NEP 2020 में, because it's 30-page documents. If I read the 4 or 5 pages daily also, it will finish in a week's time. It is the interest that has to be created. That's not happening right now. But now I think if you go back, you will go through this entirety of the NEP, and then of course the NCF also. And how to go the NCF, 600-page documents, I will let you know also, but after finishing this chapter, this session. Now NEP 2020 says that the approach to assessment must make a shift from formative assessment to summative assessment. No, from summative assessment to formative assessment. Right now we are dealing with only with the summative assessment. So assessment must make a shift from summative assessment to formative assessment, and from rote memorizational skills to more of competency based. More of competency based that promotes learning and development for children and must test higher order thinking skills. ये जो formative assessment है ना, ये मैं आपको बता दूं, ये एक continuous evaluation CC था पहले, इसका एक decent स्वरूप मैं कहूँगा, is a better version of that CC, the formative assessment है. Okay. It also says, the para 4.35, that we must develop a holistic report card. Holistic report card की बात कही है, progress card, HPC, that shall be developed, that reflects the achievement of the learner in cognitive, affective and psychomotor domains. Cognitive आप जानते हैं, head से relate है, affective जो heart से relate है, 3H है, और साइकोमोटर डोमेन्स जो हैंड से रिलेट है, 3H है, इसका स्वरूप को हम लोग कहते हैं कॉग्निटिव, एफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स. एंड दिस HPC मस्ट ऑल्सो इंक्लूड द सेल्फ असेसमेंट, भी मैं बात करूंगा, peer assessment, yes, and the progress of the child in project based learning and the inquiry based learning, and must also include the achievement of the children in formative assessment using multiple tools. देखिए अब जो हम लोग एग्जाम लेते हैं ना, करते हैं ना, समेटिव एग्जामिनेशन, मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन हम एक ही टूल यूज करते हैं, दैट इज अ पेपर पेंसिल टेस्ट, सिट डाउन टेस्ट. ये ऑब्सोलीट है, रिटन टेस्ट. तो आई थिंक वी नीड टू यूज द मल्टीपल टूल्स. मल्टीपल टूल्स को भी हम अभी आएंगे करने के लिए. दीज आर द नॉट न्यू थिंग्स, बट फॉर यू, सम ऑफ यू मे बी न्यू थिंग्स that should be reflected in the HPC also. Okay. Now, before I embark, हम आगे जाएं, we have to clarify one important point in assessment. We often use the 4 terms. School assessment भी हम school education में बात करते हैं. We often use this. Test की बात करते हैं, examination की बात करते हैं, assessment की बात करते हैं और evaluation की बात करते हैं. And we do not try to whether these are the same term or is there any difference between them. देखिए आज आप हमारे सेशन अटेंड करने के बाद फिर भी अगर आप कहेंगे कि सब हम असेसमेंट और इवैल्यूएशन में कोई फर्क नहीं महसूस होता है, देन इट विल नॉट रिफ्लेक्ट ऑन योर इंपॉर्टेंस, इट विल रिफ्लेक्ट बैड ऑन मी. कि देखिए गांगुली का सेशन भी अटेंड किया, उनको मालूम नहीं चला. तो वी मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट दिस 4 टर्म्स: टेस्ट, एग्जामिनेशन, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन. देन आई विल प्रोसीड फर्दर. ओके, देखिए एग्जामिनेशन जो एक टेक्निक है, examination is a technique
अभी किसी ने बात किया, टूल की बात की मुझसे, अभी बात कर रहे थे, कई लोगों ने मुझसे बात किया इंडिविजुअली. एग्जामिनेशन इज ए टेक्निक एंड टेस्ट इज ए टूल. ओके, इन द टेक्निक वी यूज द टूल. ओके, in the technique we use the tool. So when you talk of examination, it only refers, mainly cover the scholastic aspect, head part, cognitive part. बस और beyond हम बात नहीं करते. It only refers to the cognitive, scholastic steps. टेक्निक जो हम यूज करते हैं either written examination और practical examination. और इसमें टूल्स जो हम यूज करते हैं that only questions and the question papers. ये हमारी तो एग्जामिनेशन हुआ. टेस्ट मैंने कहा टूल है, एग्जामिनेशन जो स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट करते हैं जिसमें हम रिटन एग्जाम लेते हैं या प्रैक्टिकल एग्जाम लेते हैं, और हम कुछ टूल्स जो यूज करते हैं इसमें क्वेश्चंस और द क्वेश्चन पेपर. बट व्हेन यू टॉक ऑफ द असेसमेंट, ये आप दूसरा, व्हेन यू टॉक ऑफ द असेसमेंट, इट रेफर्स टू एनी प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट लर्निंग. स्टूडेंट लर्निंग की हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, एंड ओवरऑल अचीवमेंट over a period of time, not only one time workout, not there, continuous, over a period of time, overall achievement. Overall achievement means on all the three aspects, the head part, the heart part, and the hand part. Overall achievement over a period of time that can be analyzed and interpreted. कि स्टूडेंट का क्या अचीवमेंट है, किस चल रहा है, किस में उसके सब्जेक्ट में कमी आ रही, दिक्कत आ रही है. That is we call the assessment. And when we talk about the evaluation, the simple formula, evaluation is equal to assessment plus value judgment about the growth of the child. जो मैथमेटिक्स के हैं वो इसलिए समझ पाएंगे कि if evaluation is a universal set, then assessment is a subset of this universal set. ठीक है, it's a bigger issue. Evaluation is a bigger things. Okay, assessment is a short one. Okay. And when you, in any examination, in any assessment, in any evaluation, three terms are very important. The three cardinal principles. कि आपकी ऑब्जेक्टिविटी क्लियर होनी चाहिए. क्यों आप एग्जाम ले रहे हैं, क्यों आप असेसमेंट ले रहे हैं, व्हाई यू आर डूइंग द इवैल्यूएशन. योर ऑब्जेक्टिविटी मस्ट बी वेरी क्लियर. Evaluation is equal to assessment plus value judgment about Growth of the student, growth of the child. Growth of the child. Yes, he is very good in mathematics. We will do exceedingly well if we continue in mathematics. That is a value judgment. Very good in language. He is a linguistic skill. That is a value judgment about the growth of the child. Okay, growth of the child. Okay. So there are three cardinal principles of a good assessment, good evaluation. Objectivity clear होनी चाहिए. Why we are testing that examination ले रहे हैं, assessment कर रहे हैं. Why? What are the objective? ये clear होना चाहिए. Reliability, जो भी हम process अपनाएं, उसकी जो है स्कोर्स जो मिलेगा वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. इफ यू टेक द एग्जामिनेशन असेसमेंट से आफ्टर ए मंथ विद द सेम स्कोर विल बी द सेम, देयर विल बी नॉट मच वेरिएंस. तो वो रिलायबिलिटी हो, जब हम कहते हैं सिस्टम इज रिलायबल बिकॉज इट्स नॉट दैट बाय हुक और बाय क्रूक द स्टूडेंट्स हैव गॉट दिस अमाउंट ऑफ मार्क्स. एंड द वैलिडिटी इज द ट्रूथफुलनेस ऑफ द प्रोसेस. जो भी प्रोसेस अपना रहे हैं उसकी एक सिस्टम है, उसकी एक प्रोसेस है. तो ट्रूथफुलनेस ऑफ द प्रोसेस. एंड तो ये दीज थ्री थिंग्स आर वेरी वेरी क्लियर. इफ थ्री थिंग्स आर नॉट मेट, इफ वन और टू थिंग्स आर मिसिंग, then your entire evaluation or assessment system actually becomes farce. There is no point in having that. So the purpose of assessment now is very clear, that we must measure the achievement of learning of the students. ये हम करते हैं assessment. और दूसरा, what are the things that we are employing, the effectiveness of classroom processes and the materials that we are using in the teaching and learning. ये जो है ये अब करता है कि whether the process is good and whatever the materials, the class materials हम यूज कर रहे हैं, that is valid also. ये है हमारा assessment का purpose. So in short we can say that educational assessment plays a very critical role in improving teaching and learning. Okay, now I'm going a little bit fast so that we can have some time for questioning also. So there are four paradigms of assessment, four paradigms, and much very clear again. There are four paradigms of assessment. One is assessment of learning. That is the summative assessment.
your yearly examination, your half-yearly examination are assessment of learning. Okay, board examination is an assessment of learning. So this is a summative assessment को हम assessment of learning कहते हैं. Then there is assessment for learning. The learning is happening or not. This is our formative assessment. We take the formative assessment to find out whether the learning is happening or not, whether students are understanding or not, whether they have assimilated or not. If that is not happening, then we need to change the style of the classroom processes so that it is properly assimilated by the students. So this is called formative assessment. This is called assessment for learning. Then there is assessment as learning. Here the students gathers some quality information about their own learning and that of others students. This is assessment as learning. So your self-assessment, peer assessment, parents assessment are assessment as learning. Okay. And there are 4 parts. The last one is assessment in learning. Here child assesses himself or herself to find out whether my learning is going right direction or not. Child assesses themselves. And if he's finding, no, my preparation is not up to the mark, then he changes the तैयारी अपनी को change करते हैं. Good students are doing that. So this is assessment in learning. So first one, yes. Yeah, self-assessment, peer assessment, and parents assessment. No, I'm coming that. You know, assessment of learning, it is the teachers who controls this. Okay, there is only teachers control the entire assessment. And assessment for learning and assessment as learning. Here, teachers and the students both co-construct, discusses the process of assessment. And in the assessment in learning, it is only the students who assesses themselves to find out whether the learning is going smoothly or not. Then he changes his or her approach. Okay, this is a fine line of difference. This is a good thing, questions you have raised. A fine line of difference between assessment as learning and assessment in learning. Okay. कुछ और questions है? Now, when you talk of the assessment as learning, here students takes the responsibility. Students takes up the responsibility to generate quality informations about their learning, own learning, and that of other students also, other friends also, in the assessment as learning. So, yes, whether the learning is happening. That's why I'm saying that it covers the 3 aspects of assessment. Child assesses himself, so self-assessment. Then there is a peer assessment. Here students assesses others participate in team activities. I will come also what do you mean by peer assessment. That I will come subsequently. So here one student assesses not themselves, that is self-assessment. Here he assesses other students' performance in a group-based activities, in team-based activities. Okay, he is cooperative, he is helpful, he is original, he is actually conducted. One student assesses others also. That is a peer assessment. Okay. And of course, the parents' assessment also, it comes assessment as learning. And assessment is in learning. Actually, in our total assessment process, whether we are doing the formative assessment or the summative assessment, we use only the assessment of learning, assessment for learning, and assessment as learning. Assessment of learning, it is a totally teacher control. External examination are all assessment of learning. Okay. Assessment for learning and assessment as learning, both teachers and students co-construct their learning. This way, periodically it will happen, we'll take monthly, we'll try monthly. But in assessment in learning, students themselves assesses themselves and find out whether his learning, whether his taiyariya is going in right direction or not. Okay. Okay. Now. That is, this assessment in learning, this is something very personal. Yes, you are absolutely right. This is very personal. Every student will not do that. And it is not measured. No, it is not measured. It is not measured. Yes, I agree. It is not measured. So you can only the 3. I mentioned simply that was theoretically you must be aware. No one says that this assessment learning to हमको सुना नहीं कभी.
as a competent and as an enlightened educationist, you must be aware of this four paradigms. This is what you, so yes, you can say, yes, we know assessment in learning. So you cannot say that we have not heard about this word. Okay, internationally this word also used, assessment in learning. Okay, that's right. You will not find, if you look into some Google search, you may not find assessment in learning. Okay, fine. Now, what are the current challenges in the assessment? क्यों हम तैयारी करना, क्यों हम चेंज करना चाहते हैं? ये क्वेश्चन होता है. Yeah, you know that most of assessment जो इस समय चल रहा है, and even today, are still centered on teaching rather than learning. बच्चों ने कितना जाना है, and we try to put them fall flat by asking questions जो हम पहले से थिंक करते हैं बच्चे इसको देने में कठिनाई होगी. We are not how much they learn. हम टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि how much they do not learn. ये जो एक तकरीब नेगेटिव तकरीब है कि हम जो है IIT में क्या होता है, JEE में क्या होता है. I had a long discussions with these IIT directors in my tenure. Why are you framing the questions which they have not attempted in our board examinations? हम वो क्यों क्वेश्चन पुट अप करते हैं JEE में या आपके जो है AITPL उस समय था, आजकल JEE मेंस हो गया है, कि बच्चे इसको नहीं कर पाएंगे. दिस शुड बी द अटेम्प्ट. तो it is still depend on the process of teaching rather than on learning, and it is definitely based on the principles and practices of the 20th century mindset. हमारे जमाने में ये होता था कि 12 क्वेश्चन दिए गए, I have attempted, answer any 8 out of the given 12 questions. बच्चा selective study कर रहा है. We have gone through selective study, though we are little bit higher in merit. हम भी करते थे selective, क्योंकि we could not revise the entire things. हमारे यहाँ तो आजकल तो बहुत easy examination हो चुका है. I know you cannot believe that in English paper we have attended 2 questions. Mathematics में 3 papers होते थे. Class 12 की मैं बात करूँ, 3 papers in mathematics. वो से जमाना हम गुजर चुके हैं. हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम था, फिजिक्स में 2 पेपर, केमिस्ट्री में 2 पेपर होते थे. So our examination system, though we have changed the pattern and the blueprint of the question papers, but it is still centered on the 20th century mindset by asking the students to do well in 1 shot or 2 shot terminal examination. Okay. And naturally, you know that it has become mechanical, routinized, and somewhat repetitive in nature. It only measures the rote learning of content rather than the measuring achievement of learning outcomes and competencies. अब होगा ये सब learning outcomes, competencies होगा. Now the textbook which is now being framed, उसमें हर chapter में ये mention होगा कि what are the learning outcomes expected to be achieved by the students. And accordingly the questions will be framed कि ये competencies हमको इतने पढ़ने के बाद होना चाहिए. The questions will be asked on the basis of that competency. So in a globalized world order, why we need a change? In a globalized world order, while many of the students will also be appearing at the global level of competition, these things cannot be continued. We have to make every student innovative and creative. That is the main task. We have to make every student innovative and creative so that they can become entrepreneur, they can take up the challenges later on in their life, and they should be tuned and trained to handle the higher order thinking skills. आपको मालूम होगा ये जो हॉर्स का जो टर्मिनोलॉजी है वो मेरे द्वारा ही दिया गया था लॉन्ग बैक. समझ गए? ये सब आप तो सब में इसमें लाया गया है हॉर्स को. हाउ इट स्टार्टेड दैट उसके ये लोग आपको बताएंगे नहीं क्योंकि दिस वर्ड्स कॉइन्ड बाय मी. हॉर्स बहुत बड़ा चर्चा की विषय बना था जो मेरे उसमें जो है हम लोग कहते थे कि वी आर ओनली बिजी विद द मॉट्स. इसको MOTS, इसको यूज करूँगा, रहने दो बहुत देरी हो जाएगी फिर. मॉट्स, वी आर ऑल कंफर्टेबल विद द मॉट्स. MOTS, ये क्या चीज है? मोर ऑफ द सेम. M इज मोर, O इज ऑफ, मोर ऑफ द सेम. मैंने कहा ये मॉट्स कब तक चलता रहेगा? तब ये कहा कि लेट अस नाउ ट्रांसफॉर्म आवर एजुकेशन सिस्टम so that we can make a transition from mods to HOTS, higher order thinking skill. कोई बता सकता है कि what is this HOTS, higher order thinking skill? Can anyone help me to what is meant by HOTS? Some questions Okay. where you require
मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, मैं थोड़ा सा क्लू देता हूँ. हैव यू गॉन थ्रू द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी? हाउ कैन रिलेट्स टू हॉर्स इन द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी? अबाउट द होराइजन. और कोई ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को हॉर्स के साथ रिलेट करिए. हैव यू हर्ड द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी? मैं तो सर्विस में आने के बाद ब्लूम्स टैक्सोनॉमी देखा हूँ. सर्विस को ट्रेन तो नहीं था मैं. हाँ, यस यस, हैव कम टू द वेरी क्लोज. ब्लूम्स टैक्सोनॉमी या पिरामिडिकल जानते हैं? इट स्टार्ट्स विद द लोअर ऑर्डर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, ये सब लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है. इसके बाद आपने सही कहा, देन एनालिसिस, सिंथेसिस, एवेल्युएटिंग एंड अल्टीमेट क्रिएटिंग. दीज आर द हॉट्स क्वेश्चंस. पर हॉट्स का वो नहीं है, मैंने आपको सिर्फ संक्षेप बता दिया. ओके फाइन. सो प्रेजेंट सिस्टम ऑफ असेसमेंट में ये हो रहा है कि रियल अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग, एनालाइजिंग, लर्निंग टेक्स ए बैक सीट टू रोट लर्निंग. अब कई स्टेट बोर्ड ने मुझसे कांटेक्ट किया है कि हाउ वी कैन चेंज द ब्लूप्रिंट एंड डिजाइन ऑफ द क्वेश्चन पेपर. मैंने उनसे अब कहा है कि वो 30% ऑफ द क्वेश्चन शुड बी ओनली ऑन नॉलेज. उसके बाद आप जो है अभी बहुत ड्रेस्टिकली चेंज ना करो. आप जो है 20-30% आप ले जाओ आपके उसमें एप्लीकेशन बेस पर, अंडरस्टैंडिंग बेस पर, और आप जो है 10% या फिर 70% ऑफ क्वेश्चंस ऑन द लॉट्स लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, नॉलेज, आपके अंडरस्टैंडिंग, आपके एप्लीकेशन, और 30% क्वेश्चन आप ले जाओ एनालिसिस, सिंथेसिस, एवैल्यूएटिंग, क्रिएटिंग. क्या चीज? अच्छा, वो ठीक है. चलो, मैंने ये कहा कि हाउ यू कैन, अभी जैसे यूपी बोर्ड ने, ही वाज कांस्टेंट टच विथ मी, सर हम कैसे चेंज कर सकते हैं. मैंने कहा यू चेंज द ब्लूप्रिंट ऑफ योर क्वेश्चन पेपर इन सच ए मैनर दैट, देखिए सबसे जो लोअर ऑर्डर नॉलेज जो होती है ना, जो जिसको हम कहते हैं रोट लर्निंग, ये आपके क्वेश्चन होता है नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन. जैसे आपने स्ट्रेट वाइज पूछा कि व्हाट इज ओम्स लॉ, बच्चे ने उसको कंटेस्ट किया, क्रैम किया और ला दिया उसको पेपर, ठीक है ना. दैट इज अ बेस्ट क्वेश्चन ऑफ बेस्ड ऑन नॉलेज. व्हाट इज द हाइजेंस प्रिंसिपल. मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, साइंस का एग्जाम्पल दे रहा हूँ. तो दैट इज ऑन द नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, दैट शुड बी ऑन 30%. एंड देन हमने कहा जो अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बेस्ड है उसको भी इस प्रकार करो कि 15-20% क्वेश्चंस ऑन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एंड 15-20% क्वेश्चंस ऑन द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज करने से अगर हॉर्स वर्क करेंगे तो बच्चे देर चांसेस है बच्चे फेल हो जाएंगे और बच्चे कहेंगे सब हम तो कुछ जानकारी नहीं, क्योंकि हमारी जो कंटेंट डिलीवरी है ना, जो आपका जो पेडागोजी है, वो अगर हॉर्स में ट्यून नहीं होगा, अगर उस पर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चा फ्लैट हो जाएगा. समझ. So what I'm saying that 70% of the question should be based on knowledge, understanding, application based, and the rest 30% क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ CBSE के जो अब लेटेस्ट नॉलेज है कि आपका क्लास 10 तो क्लास 12 में जो क्वेश्चंस आएंगे तो 30% ऑफ द क्वेश्चंस विल बी ऑन हॉट्स. ये जो कहा गया, मैंने उसे इन लोग ये भी फीडबैक दिया कि 20% आपका जो क्लास 10th में करो और 30% आपका क्लास 12th में करो, बट दे आर थिंकिंग, भी बता रहा हूँ, रेस्ट 70% will be based on the lower order thinking skill. तो ये हमारी प्रेजेंट सिस्टम ऑफ असेसमेंट है which is not helping the students to create a innovative or creative mindset. That is the problem with the current challenges in assessment. So let us now come out what changes. उसके पहले मैं एक चीज और कर दूं, NCF में जो मेंशन किया है की प्रिंसिपल्स ऑफ गुड असेसमेंट, ये NCF से मैंने लिया है. इट्स नॉट ऑफ माई एनी डूइंग ऑन माई ओन, ये NCF से मैंने लिया गया. उसमें तो NCF में तो बड़ा फुल चैप्टर्स है कि की प्रिंसिपल्स ऑफ गुड असेसमेंट. मैंने इसमें की पॉइंट्स ले लिए और की पॉइंट्स आपको दे दिया. विल गो थ्रू दिस PPT, विल गेट द कॉपी ऑफ इट. इसमें हमने लिखा है कि असेसमेंट शुड मेजर अचीवमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज एंड लर्निंग आउटकम्स, ताकि हमारे जो करिकुलर गोल्स है वो समझाए. ये गुड असेसमेंट. असेसमेंट शुड बी कंस्ट्रक्टिव, डेवलपमेंटल एंड लर्निंग फोकस्ड. ये होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव. बच्चों को आप अनायास ही आप पुअर में ना डालो, ये नो, शुड बी डेवलपमेंटल, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, मेक इट पॉजिटिव. असेसमेंट शुड बी स्टेज अप्रोप्रिएट. अब ऐसा ना हो कि आप फाउंडेशनल स्टेज पर, प्रेप स्टेज पर जो असेसमेंट ले रहे हैं वही आप मिडिल स्टेज पर भी ले गए हैं, वही आप सेकेंडरी में ले गए हैं, होम
जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट है, बिल्कुल ऐसा ना करिए. इट शुड बी स्टेज अप्रोप्रिएट. यू चेंज योर टूल्स, you change your blueprint, you change the content of the summative and the formative part. You change the tools also. So it should be stage appropriate. Assessment must accommodate student diversity. ये एक बहुत important चीज है. ये हम नहीं करते. All students are not having the same ability. Class 8 तक आपके पास autonomy है. When you have the autonomy, why you are not, जो differential ability है, why not taking the differential assessment? Why we are asking all the students at the foundation prep stage, he is not good in sit down test. वो 2 घंटे बैठ के आपका नहीं दे सकता है. Why can't you change that sit down test for those students? Make it oral assessment. What is harm? Sky will not fall. क्योंकि हम कहते नहीं साहब वो तो उस स्कूल ऐसा ही ले रहा है, नहीं साहब ये गड़बड़ हो जाएगा, फिर बच्चे जो क्लास 10th और 10th में जब जाएंगे, अरे forget about the things what will happen about 5 years or 6 years hence. Look for the present. What is the present? He is having difficulty. He cannot sit down for 1 hour because he has really on a sit down test, paper pencil test. Why are you insisting? Why are you making compulsive situation? Take those students only oral assessment. Look. So we need, teachers must have the ability to create a different types of assessment to reach to the same learning outcomes. ये ability होना चाहिए. वो हम लोग का mindset जब तक change नहीं होगा ना, so if you have autonomy, no one will question you, because we know that this type of students have certain disability, certain shortcomings, and we are using the multiple tools, we are using the different techniques. No one will force upon you कि साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं. जो अगर करेगा भी तो he doesn't know about the system of education. People will appreciate if you put up on your website, yes, we are taking good care of the learning deficiencies of each children. We are using the differential assessment. आप वेबसाइट में मेंशन करिए, we are the first school in the system where we are using the scientific way of differential assessment up to class 8. करो, जब आपका वेबसाइट कोई देखेगा, अरे this school is different. शेयरिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है. हम जैसे शेयरिंग कर रहे हैं, लोग पूछते हैं आप शेयरिंग क्यों कर रहे हैं, आपका पूरा पीपीटी को लेने दो, हमने क्रिएट किया, लेने दो उनको, हम क्या करेंगे इसको, हमें कोई बेचना थोड़ी है. नो, लेने दो. If you can increase his knowledge and put up others, I cannot reach to every people. In order to reach to the unreached, आप लोग की हेल्प लेंगे, नो प्रॉब्लम. अपने वेबसाइट में रखो. यस, वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ, बनाओ क्रिएटिव. हार्वर्ड के वेबसाइट पे देखिए क्या गजब गजब का स्टेप्स उन्होंने लिए, उसको मेंशन किया उसमें. एंड दे आर नॉट, बरीड नहीं है कि हमारी चीजों को कोई कॉपी करेगा. ये माइंडसेट थोड़ा सा बिगड़ करना पड़ेगा है. ये बड़ा कमजोर दिल जो है ना, इसलिए मैंने कहा स्कूल हेड शुड नॉट बी नाइदर वीक माइंडेड नाइदर वीक हार्टेड. दिल को बड़ा करिए. स्मॉल माइंड से, स्मॉल हार्ट से आप बिगर अचीवमेंट नहीं कर सकते. वी कैन नॉट अचीव बिगर थिंग. ओके फाइन. हम आप लोग को सरमन नहीं दे रहे हैं. इट इज अप टू यू टेक द मेजर्स. जो रिजेक्ट है उसको रिजेक्ट कर दीजिए. दैट्स नॉट माय ड्यूटी टू गिव यू द सरमन, नाइदर आई हैव द कॉम्पिटेंसी. ओके. असेसमेंट शुड बी सपोर्टेड बाय टाइमली, क्रेडिबल एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू स्टूडेंट. एक बोर्ड ने अभी 1-2 साल पहले 6 मंथली बोर्ड एग्जामिनेशन लिया, हमारे नाम लिया, और उसका रिजल्ट निकाला 5 महीने बाद. वाई? इतनी देरी नहीं होना चाहिए. शुड गिव इट, क्योंकि आपने का असेसमेंट किया है, बच्चे जानकारी, बच्चे बहुत उसमें वो थे, परेशान थे कि सब हम लोग मालूम नहीं, हम लोग जो एग्जाम किए है उसका क्या रिजल्ट हुआ. सो असेसमेंट शुड बी सपोर्टेड बाय टाइमली, क्रेडिबल एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक. ये ऑलवेज याद रखिएगा. कभी ना बच्चों से मैं कभी विश्वास नहीं करता हूँ लास्ट ग्रेड दे रहे, यूजिंग द 5-point grading scale or 9-point grading scale. Try to avoid giving them the last grade. Try to avoid. Unless and until being forced to. कि लड़का तो एकदम ही इम्प्रूव कर रहा है. Timely, credible and constructive feedback. Okay. So these are the things, and they have mentioned many other things also, but I have taken only 5-6 points which are relevant for you actually. Okay. Now with this background in mind, yes, we have. With this background in mind, let us now create a assessment strategies. हम assessment framework की बात यूज नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रेमवर्क तो आपका है ही नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क. हम कहेंगे नाउ लेट अस सी द असेसमेंट स्ट्रेटजीज अक्रॉस द स्टेजेस. ये असेसमेंट फ्रेमवर्क की जगह हम यूज करेंगे, दैट विल बी बेटर वर्ड, असेसमेंट स्ट्रेटजी अक्रॉस, असेसमेंट स्ट्रेटजीज अक्रॉस स्टेजेस. ओके. क्योंकि फ्रेमवर्क ऑलरेडी है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का ही रहा है, उसमें असेसमेंट फ्रेमवर्क भी वर्ड निहित है, तो वी शुड नॉट यूज दैट वर्ड. It will be better what assessment strategies across stages. Okay. So let us now look into what I need to go through very fast. ज़्यादा करेंगे इसमें.
At foundational stage, एट फाउंडेशनल स्टेज क्या आपकी असेसमेंट होनी चाहिए, ये आप सजेस्ट करिए क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट चीज है. यस, एट दिस स्टेज, असेसमेंट एट दिस स्टेज शुड नॉट कंट्रीब्यूट टू एनी एडिशनल बर्डन फॉर द चाइल्ड. ये आपने प्री नर्सरी, नर्सरी या नर्सरी KG1, KG2 और क्लास 1 एंड क्लास 2, ये फाउंडर स्टेज है. तो असेसमेंट एट दिस स्टेज शुड नॉट क्रिएट एनी एडिशनल बर्डन फॉर द चाइल्ड. It should be a part of their learning process. So, explicit test and examination at this stage are strictly no, no. Yes. No, no at this stage. It is a part of the learning process. So at this stage, there should not, से पढ़ के आज तो एग्जामिनेशन हो रहा क्लास 1 का बच्चों का, अलग से आप टाइम टेबल दे रहे हैं, अलग से, no, no, this should not happen at this stage. इसलिए कहा गया no, no at this stage. इंटायर फाउंड पर हम कहेंगे कि अप टू क्लास 1, इसलिए मैं कह रहा हूं क्लास 1. यू मे से व्हेन क्लास 2 इज आल्सो पार्ट ऑफ फाउंडेशनल स्टेज. वाई आप क्लास 2 को नहीं ले रहे हैं कि एक्सप्लिसिट एग्जाम और नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हम चाहेंगे कि क्लास 2 में रिटन टेस्ट भी थोड़ा सा आ जाए. बिकॉज एट ग्रेड 3, एट द एंड ऑफ द ग्रेड 3, देयर विल बी कॉम्प्रिहेंसिव समेटिव असेसमेंट ऑफ योर स्टूडेंट्स बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी, जो बच्चों को पास फेल नहीं करेगा, पर आपके स्कूल की जानकारी देगा कि आपके स्कूल में लर्निंग ठीक से चल रही है या नहीं चल रही है. तो दैट विल बी डन बाय, और इट विल बी रिटन टेस्ट, सिट डाउन टेस्ट. तो इसलिए मैंने कहा कि क्लास 2 में आप थोड़ा स्लोली आप एक फॉर्मेटिव असेसमेंट में या एक हाफ ईयरली एग्जाम्स में, ईयरली एग्जाम्स में आप सिट डाउन टेस्ट करा सकते हैं. सिंपली दैट द चाइल्ड इज अवेयर कि व्हाट विल बी हैपन इन क्लास 3, इतना कर सकते हैं. ओके. So, explicit, yes, here teachers must be aware at this stage, foundation stage, must be aware of the learning outcome of each chapter of each subject. Assessment should allow the diversity among children and in their learning. Number 2, and number 3, the teacher must have the ability to design different kinds of assessment for the same learning outcome. ये मैं कह चुका हूँ, ये होना चाहिए. डिफरेंशियल एबिलिटीज को आपको अप्रिशिएट करना होगा और उसको अपने असेसमेंट प्रोसेस में लागू करना होगा. एंड इफ यू आर डूइंग दैट, पुट अप इन योर वेबसाइट, दिस इज हाउ वी आर हैंडलिंग द एंड डूइंग दिस. इट विल वंडरफुल थिंग विल हैपन, आई एम सेइंग यू. सो वन साइज फिट्स ऑल सिस्टम मस्ट बी अवॉइडेड, ये मैं कहना चाहता हूँ. वन साइज फिट्स ऑल सिस्टम मस्ट बी अवॉइडेड एट दिस स्टेज. नाउ द टू इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ असेसमेंट at this stage, foundation में क्या है? Two important methods now आ रहा हूं आपको. One is observation of the child. The two important tools of assessment at the foundational stage, one is the observation of the child, and second is the analyzing artifacts. The artifacts क्या है? Analyzing artifacts that the child has produced. That the child has produced at this stage during their learning, during the learning experience. जो child ने produce किया है. It could be day-to-day activity sheets, हो सकता, collection of material during their field trips, or the photograph of the children with in action, वो अपने photograph children in action with teachers comments and observation. ये आपका analyzing artifacts है. तो ये दो important tool है आपके foundation stage में. One is the observation of the child. Let us come to the in detail how you will do that. Observation of is listening. उसमें देख लिया बच्चा, चाइल्ड इज लिसनिंग, और व्हेन द चाइल्ड प्लेइंग, उसमें भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो है व्हेन दे आर इन साइलेंस, साइलेंट मोड भी बच्चे का जो है. मैं अपने ग्रैंड डॉटर से पूछता हूँ आज क्या किया, सिट डाउन, ये किया, दैट कैन बी ऑब्जर्व. और व्हेन दे आर इन नेचर, सिंपल सिंपल चीजें हैं जो आप कर सकते हैं. दैट इज अबाउट द अनस्ट्रक्चर्ड जो है आपने किया है. Some more informations can be collected through structured observation also of students' activity. आज हम structured observation हम कर रहे हैं of their task. But one important thing that you should not use only one tools. Various techniques like debates, elocution, recitation, group work, activities, simple projects can be used and observe that. Various tools should be used while observing the child. And it will be better if you can go for 5-point grading scale.
बट इट्स नॉट दैट द ग्रेडिंग हैज टू बी देयर, यू कैन यूज द मार्किंग स्किल्स ऑल्सो, और उसके लिए आपको ऑब्जर्वेशन क्राइटेरिया बनानी होगी, और ईच क्राइटेरिया को आपको मार्क्स अलॉट करना पड़ेगा आउट ऑफ 5। ये क्राइटेरिया तो 1 मार्क्स देंगे, ये क्राइटेरिया 1 मार्क्स देंगे, ये क्राइटेरिया तो 1 मार्क्स देंगे। तो आप मार्किंग स्केल भी यूज कर सकते हैं, बट प्रेफरेबली इफ यू गो फॉर ए 5-point ग्रेडिंग स्केल, A, B, C, D, E, with A is the outstanding or excellent, E is the poor, avoid the E, poor grade. Okay. Now that is about the observation. Okay. No, okay, fine. Now the observation as a, okay. Okay, fine, observation, and okay, let me see the other things. Now, other tools to record observation, yes. One is the anecdotal records. Other two record और भी tools हैं, एक होता है anecdotal records, आपने नाम सुना कि नहीं मुझे नहीं मालूम. And one is the checklists. Anecdotal records and the checklist. Now, what is this anecdotal records? It is an observed behavior of a student. ये थोड़ा सा abstract item है, थोड़ा सा. It is an observed behavior of a student. It is an observation what children say or do while they are engaged in a particular activity. But इसमें एक why ये नाम दिया गया anecdotal records? यह है कि it is multiple times it is recorded. ये हम करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. Multiple time it is recorded and emphasis should be on recording multiple episodes, और इसी multiple episodes को हम anecdotes कहते हैं. That is why ये इसका नाम पड़ा है anecdotal records. है ना, ये आप करते हैं. ये anecdotal records is one of the important tools of observation of child. Another is the checklist. Checklist क्या है? It is a tool for identifying and recording whether a child has accomplished required learning outcome. And it is always in yes or no format. Yes होगा तो tick, no होगा तो tick, और कुछ नहीं. So it is how you will collect the information, either by observing or by questioning. या questioning oral होगी, oral questioning होगी, written नहीं होगा, written test has to be avoided, or by document analysis. आपने document रखा है, maintain किया है, उससे आप analyze कर रहे हैं, checklist बना रहे हैं, and it is usually yes or no format. मैं आपको sample दे रहा हूँ एक checklist की, तो आपको इससे जानकारी हो जाएगी, कोई abstract item है. ये देखिए sample checklist हमने बनाया है for language और literacy के लिए, और ऐसे skills जो हम देखना चाहते हैं वो लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स को हम देखना चाहते हैं कि इस स्टेज में बच्चे के लिसनिंग स्किल्स और या स्पीकिंग स्किल्स आया कि नहीं आया है. तो हमने इसमें कुछ क्राइटेरिया बना रखा है. क्या? लिसन विथ अटेंशन टू कन्वर्सेशन स्टोरीज. यस, नो. यस सर, यस. नो का नो. रिसाइट्स, रिपीट्स स्मॉल पोएम्स, एक्शन सॉन्ग्स, पार्टिसिपेट इन म्यूजिक एंड रिथमिक एक्टिविटीज. यस, नो. Able to follow 2 or 3 step instructions. Yes, no. Response to questions through sentences and used appropriately. Yes, no. Uses appropriate vocabulary and speaks complete sentences about an idea, object, picture, experience. Yes, no. तो हमने इस किया और उसके साथ लगा दिया ये हमारी क्राइटेरिया. इस पे बच्चे का ये यस है, ये बच्चे का ये नो है. ये आपका सैम्पल चेकलिस्ट है, और जब हम असेसमेंट रिकॉर्ड भेजेंगे ये क्राइटेरिया क्यों भेजेंगे कि बच्चे का देखिए आपने डेवलपमेंट आप देखिए. एंड इट इज़ बेटर टू यूज ए क्वार्टरली असेसमेंट Q1, Q2, Q3. इफ Q4 इज पॉसिबल फाइन, यू कैन डू द Q4 ऑल्सो. ये आपका जो है इसी तरह से हम जो है आपके वो कर सकते हैं फॉर अबाउट द रीडिंग एंड द राइटिंग स्किल्स का भी करा सकते हैं उसमें स्टेज पर जो है, और आपका जो है मैथमेटिक्स में भी हम इसको जो है यूज़ कर सकते हैं. Now, observation as a tool has various advantages. इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि इस स्टेज पर ऑब्जर्वेशन होना चाहिए. बहुत सारे एडवांटेज इसमें हैं. We can recognize, identify the individual. कर सकते हैं हम लोग on a continuing basis over a period of time. कर सकते हैं, हमने बना दिया. Over time, then a pattern of attitudes, aptitude and interest emerges
ठीक है ना, विच गिव्स ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर of the students without taking any examination. Observation is true, but it has some limitation also. इसलिए उसको आपको caution करना पड़ेगा. It has some limitation. क्या है? Jumping to conclusion on one or few observation. भाई उस स्टेज की चाइल्ड की वो है, कभी वो आपका एनवांस होगा, कभी जवाब नहीं दिया. It can happen. Very simple, normal affair. आप ये कंक्लूड करेगा ये बच्चा जो कुछ जानता नहीं. No, please. इसलिए मैंने कहा मल्टीपल एपिसोड्स आप लीजिए. जंपिंग टू कंक्लूजन ऑन वन और फ्यू ऑकेशन, ये दिक्कत है. स्किल ऑफ द टीचर एज ऑब्जर्वर, दैट्स इंपॉर्टेंट. डिटरमाइनिंग व्हाट इज ऑब्जर्व, क्या देख रहे हो आप. टीचर्स की इसलिए एम्पावरमेंट जरूरत पड़ेगी. लैक ऑफ सेंसिटिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर. आज बच्चा जो है घर में कुछ कारण से खाना नहीं खोया, कुछ है, वो सेंसिटिविटी और रखना पड़ेगा उस छोटे बच्चे के लिए. 3+, 4+ बच्चा है भाई, 5+. तो लैक ऑफ सेंसिटिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी इन द वे द ऑब्जर्वेशन इज डन. पर हम ये कहेंगे ये सब सेकेंडरी इश्यूज है. दिस कैन बी ओवरकम. हाउ? बाय अप्रोप्रिएटली प्रिपेयरिंग द टीचर्स अकॉर्डिंगली. क्या करेंगे टीचर्स को प्रिपेयर? व्हाट टू ऑब्जर्व, हाउ टू ऑब्जर्व, व्हेन टू ऑब्जर्व. ये टीचर्स की अभी जो आपका इन हाउस जो ट्रेनिंग होता है बैक टू स्कूल प्रोग्राम में, आपको अगर जानकारी होगी तभी आप नॉलेज दे पाए, या किसी के बाहर से भी बुला सकते हैं. यू कैन डू दैट. सो नाउ लेट अस, अदर टेक्निक्स भी है इस स्टेज पर, फाउंडर स्टेज पर. केवल यही नहीं कि ऑब्जर्वेशन और आपका एनालिस, आप और क्या क्या है टेक्निक्स. वन इज द असाइनमेंट्स, वन इज द वर्कशीट्स, एंड वन इज द एनालाइजिंग आर्टिफैक्ट्स. ये टूल भी हम यूज कर सकते हैं, असाइनमेंट्स भी हम यूज कर सकते हैं. व्हाट इज असाइनमेंट्स? थीम बेस्ड टास्क है. थीम बेस्ड टास्क टू बी कंप्लीटेड एज क्लास वर्क और होमवर्क, एंड इट कैन बी बोथ ओपन एंडेड और स्ट्रक्चर्ड. ये थीम बेस्ड टास्क है, ये असाइनमेंट्स कहते हैं. एंड इट हैज सेवरल एडवांटेज, बहुत एडवांटेज में. क्रिएटिविटी कैन बी प्रमोटेड. इसमें ग्रुप वर्क को हम इंकरेज कर सकते हैं, और इंकरेजिंग द स्टूडेंट्स टू गो बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक्स. ये शुरुआती दौर में हम सो कर सकते हैं. बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक भी बच्चों को दीजिए, खाली टेक्स्ट बुक तक सीमित ना रखें. दिस इज असाइनमेंट. वर्कशीट्स, दिस इज अ स्कॉलिस्टिक टास्क. वो थीम बेस्ड टास्क, ये स्कॉलिस्टिक टास्क, जिसमें चिल्ड्रन परफॉर्म करता है और रिस्पॉन्ड करता है रिटन फॉर्म, एंड इट शुड बी डन विद इन क्लास एंड इन स्कूल ऑनली. इसको आप होमवर्क रूप में नहीं दे सकते. यही फर्क है असाइनमेंट्स और वर्कशीट्स में. इट मस्ट बी डन विद इन क्लास एंड स्कूल टाइम ऑनली, एंड इट इज अ वेरी इफेक्टिव असेसमेंट टेक्निक्स फॉर टीचर्स, पर्टिकुलरली फॉर क्लास 1 एंड क्लास 2. इस स्टेप पे जो वर्कशीट्स पे जो हम देते हैं. ओके, सो why I am saying that ये worksheet? Because students' response in worksheets can give the teacher clear understanding of the learning level of the child. Clear दे सकता है ये, इसलिए worksheets is a very important things. Now let us go to analyzing artifacts. ये artifact मैं बता चुका हूँ. An artifact is in an early childhood classroom refers to a things or objects created by a child during teaching learning process. It provides a very rich information about a child's strengths and abilities. इसमें क्या होता है, हमें बच्चों की एक पोर्टफोलियो रखनी पड़ेगी. ठीक है ना. We need to keep a portfolio of the students' work over a period of time. And then this can be put up in a folder. Folder में हमने रख दिया. Children will take the entire folder home at the end of the term or at the end of the learning cycle. ये आपके जो है artifacts है. And with teachers' comments on observation, notes, it provides comprehensive information of a child's learning development and progress. ये an artifacts है. Okay. मैं फिर भी कहूँ थोड़ा सा abstract है, but it's a good thing to learn. And you can go through it when you prepare with along with the NCF को पढ़ेंगे आप. Now assessment at preparatory stage. यहां से क्लास 3 से ए रोबस्ट सिस्टम ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज रिक्वायर्ड नाउ. ओके, सो दैट ए चाइल्ड का जो है प्रोग्रेस है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रैक द इंडिविजुअल चाइल्ड्स प्रोग्रेस. रोबस्ट सिस्टम ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट. इस स्टेज पर हम क्या उम्मीद करते हैं बच्चों से? क्या हमारी क्लासरूम पेडागोजी होती है क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 में? बच्चों में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए,
बच्चों में बेटर कॉम्प्रिहेंशन होना चाहिए। बच्चों चिल्ड्रन मस्ट बी अवेयर ऑफ द कॉम्पिटेंसीज टू बी अटेन एट दिस स्टेज। देखिए मैं थोड़ा सा पहले तो भूल गया था, पहले फाउंडेशनल स्टेज में पर्टिकुलरली फ्रॉम क्लास 1 वोकेबलरी पर काफ़ी जोर दीजिएगा। इट मे नॉट बी द पार्ट ऑफ योर टेक्स्ट बुक, बिकॉज टेक्स्ट बुक विल बी इज बीइंग प्रिपेयर फ्रॉम क्लास 1 ओनली, ठीक है ना, मे नॉट बी पार्ट ऑफ टेक्स्ट बुक, पर आप वर्कशीट दिए बच्चों को, एक छोटी सी वो दे दीजिए और बच्चों से पूछिए कि बट डेली एवरी डे यू हैव टू लर्न 2 or 3 न्यू वर्ड्स। उसकी मीनिंग नोट कर लेना, अपने पेरेंट्स से इसकी पूछ लेना। डिक्शनरी देखने में थोड़ा दिक्कत होगी क्लास 1 में, क्लास 3 से हो जाती है उनको, तभी कहिए वोकेबलरी के रखिए जो दीजिए एवरी डे 2 न्यू वर्ड्स, और उस पर फिर आप असेसमेंट लीजिए, बच्चों का लीजिए एज ए पार्ट ऑफ, जो कर सकते हो। मतलब गुड थिंग, मैं इसको भूल गया था इसलिए मैंने इसको करा। तो एट दिस स्टेज प्रेपरेटरी स्टेज क्लास से बेटर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, बेटर कॉम्प्रिहेंशन, और चिल्ड्रन मस्ट बी अवेयर ऑफ द कॉम्पिटेंस। टीचर्स को भी जानकारी होनी चाहिए कि व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स एंड व्हाट आर द कॉम्पिटेंसीज दैट नीड्स टू बी एट दिस स्टेज। Now here at variety of assessment methods should be used at this stage. Class 3 से written test at this stage, periodic summative assessment at this stage, portfolios can be used to measure children's overall holistic development, and peer and self assessment इस स्टेज पे होना चाहिए, प्रिपरेटरी स्टेज पर, ठीक है। इसमें एट द एंड ऑफ द प्रिपरेटरी स्टेज देयर विल बी कॉम्प्रिहेंसिव समेटिव असेसमेंट एट ग्रेड 5 बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी। अगेन मैं बता रहा हूं, इट विल नॉट कैटेगराइज स्टूडेंट्स एज ए पास और फेलियर। आफ्टर एनालाइजिंग दोज परफॉर्मेंसेज इट विल ग्रेड द स्कूल्स कि आप स्कूल में लर्निंग ठीक से चल रही है या नहीं चल रही है। इस चिल्ड्रन का जो पास फेल क्राइटेरिया होगा ना, वो तो आपका जो अपना ओन असेसमेंट है, दैट विल बी दैट। ये जो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कॉम्प्रिहेंसिव समेटिव असेसमेंट एट ग्रेड 3 ग्रेड 5 जो एनईपी में सेंसस एग्जामिनेशन के नाम से कहा गया है, दैट विल बी डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी एंड दैट विल बी ए सिट डाउन पेपर पेंसिल टेस्ट, ठीक है ना, ये होगा। इसी स्टेज पर हम चाहेंगे कि प्रोजेक्ट वर्क इंट्रोड्यूस हो जाए क्लास 3 या क्लास 4 से, क्रिएटिव असाइनमेंट बच्चों को दिया जाए, और इसी से ही बच्चों को हॉट्स के बारे में भी क्लास 4 से मैंने कहा है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स ये इनको देना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। ओके ओके, सॉरी। फॉर्मेटिव असेसमेंट हम इसमें जोर दे रहे हैं आपके प्रेप स्टेज पर। आप क्यों जानते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट क्यों लेते हैं? अब हमने आपसे कह चुके, इट इज व्हाई वी यूज द टीचर बाय द टीचर्स। इट इज सिंपली बिकॉज इट गिव्स द लर्निंग पोजीशन, द असिमिलेशन ऑफ लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स। इट गिव्स अ पिक्चर इन ए वेरी नॉन थ्रेटनिंग सपोर्टिव एनवायरनमेंट। अगर बच्चों का परफॉर्मेंस किसी चीज़ में अच्छा नहीं है, किसी स्किल्स में अच्छा नहीं है, तो हम बच्चों को बताते हैं इसमें इंप्रूव करो, योर परफॉर्मेंस इज नॉट गोइंग, इट बिकॉज इट इज डायग्नोस्टिक एज वेल रेमेडियल ऑल्सो। एंटायर जो आपका जो एकेडमिक सेशन है, इसको हम 2 टर्म में डिवाइड कर सकते हैं। आई एम गिविंग वन एग्जांपल हाउ यू विल कंबाइनिंग फॉर्मेटिव एंड समेटिव। इट इज नॉट ए प्रिस्क्रिप्टिव वन, इट इज अप टू यू टू थिंक डिफरेंट टाइप्स ऑफ, बट व्हाट आई एम सेइंग that there should be combination of both formative and summative assessment at this stage, and the performance of the student should be declared by combining the both formative assessment as well as the summative assessment. Okay, ये मैं कह रहा हूँ। What I am giving, each academic session can be divided into 2 terms, and each term will have, can have prescriptive as can have 2 formative and 1 summative assessment, ठीक है ना। ये अब किसको किया जाए? टीचर मस्ट यूज फॉर्मेटिव असेसमेंट, मल्टीपल टूल्स यूज होगा, नॉट ओनली द पेपर पेंसिल टेस्ट या रिटन टेस्ट। समेटिव असेसमेंट में आपका जो है रिटन टेस्ट होगा, पेपर पेंसिल टेस्ट होगा। तो वी कैन यूज 3-4 मल्टीपल टूल्स, जिसमें 1 टूल आपका पेपर पेंसिल से रिटन डाउन, बट वी नीड टू यूज 3-4 डिफरेंट असेसमेंट टूल्स फॉर समेटिव असेसमेंट। ये आपका असाइनमेंट हो सकता है, क्विजेस हो सकता है, डिबेट्स हो सकता है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज हो सकता है, इवन क्लास वर्क पर भी आप बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। ओके, बट इट्स ऑल दिस थिंग शुड बी डन क्लास एंड स्कूल टाइम ओनली। है, बच्चे घर में भेज देंगे तो बच्चे नहीं करेंगे, पेरेंट ही करेंगे। सो अब मैं एक फिर आपका सजेस्टिव दे रहा हूं, इट्स नॉट प्रेस्क्रिप्टिव।
कैसे कर सकता? से FA1 कैन बी डन इन द मंथ ऑफ FA1 फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 कैन बी डन इन द मंथ ऑफ मे. ये प्रेस्क्रिप्टिव नहीं है, फिर मैं दोहरा रहा हूं, सजेस्टिव. All formative tests will be done by the school as per their convenience, as per their timetable. हर विद्यालय की अपनी एक लर्निंग और टीचिंग लर्निंग स्टाइल साइकिल होती है, उसके मुताबिक आप इसको करेंगे. I have given one such suggestion. The FA1 can be done in May, FA2 can be done in the month of August, SA1 can be done in the September. This is the first term. उसके बाद हमने कहा सेकेंड टर्म में FA3 can be November, FA4 in January and SA2 in March. But I have made a very underlining thoughts that no other assessment in between, so that learning hours are not lost. हर सब्जेक्ट की एक लर्निंग आवर्स होती है, वो लॉस नहीं होना चाहिए by doing the multiple assessment techniques. Okay. From each formative assessment, we'll take the 10% of weightage. And from each summative assessment, we can take the 30% of weightage. And the final results will be declining by combining 40% of some formative assessment plus 60% of summative assessment. देखा, ये मैंने आपको डिटेल में दे दिया. नाउ अब मैं आपको एग्जाम्पल दे दिया FA1 का लैंग्वेज में. एक एग्जाम्पल है कैसे FA1 अब करेंगे. लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज मैंने रख दिया 100% पर हम एग्जाम कर रहे हैं FA1 का. रिटिन में हमने 50 नंबर दे दिया और मल्टीपल ट्यूज यूज करने की बात हो रही है. असाइनमेंट में हमने 20 मार्क्स रख दिया, क्लास वर्क में हमने 10 मार्क्स रख दिया, ग्रुप वर्क में हमने 10 मार्क्स रख दिया, एक्सटेम्पोर स्पीच और कम्युनिकेशन में हमने 10 मार्क्स कर दिया. तो दिस गिव ए टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 100 मार्क्स. बच्चे को 73 मिला है आउट ऑफ 100. उसका 10% हम लेंगे तो असेसमेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट में हम इंडिकेट करेंगे 7.3. दिस इज हिज वेटेज फॉर FA1. 10% ही हम लेंगे. ओके, लेट अस नाउ अगेन गोइंग फास्ट. इंटरनेशनल ये पैटर्न है इस स्टेज पर कि रिजल्ट इन इंटरनेशनल बेस्ट ऑफ द सिस्टम में आपके इंटरनेशनल पैटर्न में बहुत यूज होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट. हमने अपने यहाँ आपको यूनिफॉर्म पैटर्न बताया है कि आप 40% फॉर्मेटिव का लेंगे और 60% समेटिव का लेंगे. इंटरनेशनल पैटर्न में वेटेज डिफरेंट होता है. एज यू प्रोग्रेस फर्दर समेटिव असेसमेंट जोर ज़्यादा बढ़ता है और फॉर्मेटिव असेसमेंट में जोर घट जाता है. देखिए क्लास 1 और क्लास 2 में उन्होंने कहा 80% फॉर्मेटिव असेसमेंट पर और ऐसे जो है उन्हें रखा 20%. एसए का साइकिल भी कम है, एक ही लेते ईच टर्म में. एफए का जो है एक ही लेते ईच टर्म में. ग्रेड 3 ग्रेड 4 में वेटेज देखिए डिफरेंट हो गया. ग्रेड 5 ग्रेड 6 में भी फिर वेटेज डिफरेंट होगा. अल्टीमेटली जब ग्रेड 7 एंड 8 में आते हैं तो एसए का वेटेज हो जाता है 80% और एफए का वेटेज हो जाता है 20%. ये मैंने आपको समझ. और ईच टर्म में एसए जो है 2 बार लेते हैं. ये आपको मैं पैटर्न इसलिए इट्स नॉट दैट इट इज यूनिक इन इंडियन सिस्टम. इंटरनेशनल पैटर्न पर भी आपका ये दोनों होता है. सो दैट गिव एन आइडिया what is happening outside also. Okay. डिफरेंट टूल्स की हम बात कर रहे हैं. एक ही टूल आप यूज ना करिएगा. सेम टूल आप लैंग्वेज में कर रहे हैं, सेम टूल आप जो है साइंस में भी ले रहे हैं, सेम टूल आप जो है मैथमेटिक्स में भी ले रहे हैं, सेम टूल आपके सोशल साइंस में ले रहे हैं. नो, यू कैन यूज. आप मैंने कुछ इसमें से मेंशन किया. यू कैन यूज मेनी अदर थिंग्स. यू आर मच मोर स्किलफुल एंड एफिशिएंट इन दिस रिस्पेक्ट. मैंने तो कुछ आपको जो आता है जैसे आप कर सकते हैं. तो फॉर लैंग्वेज के लिए मैंने कहा ये टूल्स हो सकता है. उसमें से आप 2 3 4 ही लेंगे. एक तो रिटन टेस्ट लेंगे, 2 3 4 ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे. हर्ष में नहीं लेने की जरूरत नहीं है. FA2 में आप दूसरा ले लेंगे, जो FA1 में ले चुके उसको हटा के दूसरा ले लेंगे. इस तरह से आप रोटेट कर सकते हैं. तो लैंग्वेज के मैंने कहा देखिए ओरल, लिसनिंग, रिटन असाइनमेंट रखा है, डिबेट्स, रिसाइटेशन रखा है, ग्रुप वर्क, पेयर वर्क रखा है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, क्लास वर्क रखा है. मैथमेटिक्स में मैंने दूसरा कर दिया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, MCQs, डाटा हैंडलिंग, ग्रुप प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं. इसी प्रकार हम देखिए साइंस में दूसरा ले रहे हैं, रिटन असाइनमेंट्स, MCQs दे दिया, वर्कशीट दे दिया ओनली ऑन MCQs, पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट. एक शीट में 10 क्वेश्चन दे दिए, बच्चे का ले लिया, वो उस कर सकते हैं. सोशल साइंस में देखिए मैंने दूसरा ले लिया है. सर इस प्रकार मल्टीपल ड्यूट्स के बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये आप कर सकते हैं. दैट यू कैन डू. It's not prescriptive one, but what I am saying, you have to use the multiple tools, and the same tool must not be repeated in FA1, F2, FA3. We can make a
various permutation and combination. Okay. Assessment at middle stage. Assessment at the middle stage. Yes. Now, assessment at this stage will be a natural extension what we are doing at the prep stage. We cannot change anything drastically. ठीक है ना? आपको याद है हम करिकुलम प्रोसेस किस पर हम इसमें फोकस देते हैं? मिडिल स्टेज में 6, 7, 8 में बच्चों को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बच्चों को हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ का जो है एक्सपोजर देना चाहिए, बच्चों की स्टेज पर ग्रुप वर्क होनी चाहिए, बच्चों के स्टेज पर प्रोजेक्ट दिया जाए और बच्चों को स्टेज पर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग दिया जाए, पर्टिकुलर इन साइंस एंड मैथमेटिक्स पर. ओके. तो नेचुरली जब हम मल्टीपल्स देंगे और एक्सटेंशन कर रहे हैं प्रेप स्टेज से लेकर मिडिल स्टेज में, द असेसमेंट हैज़ टू बी कंटिन्यूअस. मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट को ही हम कंटिन्यूअस असेसमेंट कहते हैं. शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव, मल्टीपलिटीज यूज करके, एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड. समेटिव एग्जाम हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा. और इसी स्टेज पर ही हम हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल पर जोड़ ले जाएंगे. ठीक है ना? याद रखिएगा. क्लास 6 में अगर हम 20% रख रहे हैं हॉट्स के क्वेश्चन, तो क्लास 7 पर हम 25 रखें, क्लास 8 पर जो है हम 30% रखें. तो हॉट्स क्या क्वेश्चंस हैं ये हमारे टीचर्स को पहले जानकारी हो. टीचर्स ही को जानकारी नहीं है हॉट्स से हम किससे मतलब रखते हैं, ये जानकारी होना बहुत. क्लासरूम फॉर्मेटिव असेसमेंट हम इस वेरियस कर सकते हैं जो हम क्लास 5 में भी कर चुके हैं. प्रोजेक्ट्स, डिबेट्स, प्रेजेंटेशन, एक्सपेरिमेंट्स, इन्वेस्टिगेशन, रोल प्लेज, जर्नल्स, इसमें बढ़ा दिया. रोल प्ले, जर्नल्स, पोर्टफोलियोज कैन बी यूज फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट. समेटिव असेसमेंट तो आपका पेपर पेंसिल टेस्ट होगा, 1 टूल यूज होगा. ठीक है ना? ये जो हम मल्टीपल टूल्स की बात करें दैट इज फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट. ओके. रेगुलर समेटिव असेसमेंट इस स्टेज पर होगा, क्लास 6, 7. वेरी क्रिटिकल स्टेज ऑफ लर्निंग मैं बता दूं, 6, 7, 8. इसमें जो बच्चों को आप बना देंगे वही चलेगा लाइफ लॉन्ग. तो 6, 7, 8 जो है वेरी वेरी क्रिटिकल, मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ लर्निंग इन द 12 और द 15 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इज दिस क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8. उसके बाद बच्चों का एटीट्यूडल फॉर्मेशन होना बंद हो जाता है. देयर में भी एक्सेप्शन, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, पर एक्सेप्शंस कैन नॉट बी जनरलाइज्ड. ओके. तो रेगुलर समेटिव असेसमेंट एट दिस स्टेज एंड एट लॉजिकल इंटरवल्स हम करा सकते हैं. आपको डिपेंड करता है, आप अगर 3 बार लेना चाहते हो लो, 2 बार लेना चाहते हो दो, कोई दिक्कत नहीं. ईयर एंड, टर्म एंड, एंड ऑफ लर्निंग एंड. बट समेटिव असेसमेंट एट दिस स्टेज मस्ट इंक्लूड MCQs स्टार्ट होना चाहिए, शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, सो दैट ये जो आजकल बच्चों में जो है सिलेक्टिव लर्निंग की ओर बढ़ रहा है, दैट शुड बी डिस्करेज्ड एट दिस स्टेज. बच्चा पूरा पढ़े, आज 2 पांत पढ़े, टोटल स्टडी करे, इस एक लेसन को बार बार पढ़े और अंडरस्टैंडिंग करने क्रिएट करे. तो इन ऑर्डर टू डिस्करेज दैट सिलेक्टिव लर्निंग एट दिस स्टेज, यही जो आप बना देंगे ना, बच्चा फिर 9, 10 में सिलेक्टिव स्टडी नहीं करेगा, पूरा पढ़ेगा, पूरा टेस्ट को पढ़ने करेगा. दैट शुड बी बिल्ट अप एट दिस स्टेज. ठीक है ना? तो इट शुड बी यूज द MCQs. और ये कोशिश करिए इस स्टेज पर भी, NEP में कहा गया है, कैन वी हैव इन द समेटिव एग्जामिनेशन ऑल्सो, हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम जो कराते हैं, 1 आवर ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड 2 आवर्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट. 3 घंटे पेपर कराते हैं, 1 आवर आप रखिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए और 2 आवर रखिए आप डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए. दैट इज अ बिल्डअप टू सेकेंडरी एंड द, इसी से बिल्डअप होती है. ओके. आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन का भी असेसमेंट अब होगा. यस, पहले को करिकुलर एक्टिविटीज था, ज़्यादा हम ध्यान नहीं देते थे, अब होगा. इट इज बिकम ए पार्ट ऑफ करिकुलम नाउ, नो लॉन्गर इट्स नाउ को करिकुलम और द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, एंड इट हैज टू बी डिफरेंट. यस, फ्रॉम व्हाट वी डू इन रेगुलर सब्जेक्ट एग्जामिनेशन. आर्ट एजुकेशन में इट कम ऑल दैट आर्ट्स, ये नहीं केवल आपका स्कल्पचर, पेंटिंग, नो, इट इंक्लूड्स थिएटर, इट इंक्लूड्स आपके जो है परफॉर्मेंस आर्ट, डांस, दिस ऑल आर इंक्लूडेड. यस, आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग, स्कल्पचर, थिएटर, ऑल आर पार्ट ऑफ द आर्ट एजुकेशन. यस, यू आर रेजिंग योर हैंड. No, you have to allot regular periods as per other subject. Yes, पर एक चीज में एक्सेप्शन किया है, और सब्जेक्ट तो कहा कि कॉम्पिटेंट टीचर्स और क्वालिफाइड टीचर्स होने चाहिए. इसमें कहा गया यू कैन हैव विजिटिंग फैकल्टी ऑल्सो. ये एक एक्सेप्शन दिया, ये एक लाइन लिखा हुआ है आपके NEP में जो मैं आपको बता रहा हूँ.
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आर्ट फिजिकल एजुकेशन को पार्ट ऑफ करिकुलम एक्टिविटी कराना। इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट है, बता रहा हूँ। ये तो हम पहले से भी करते रहे, हमने अपने पीरियड में उनसे जो बात करते रहे, वो कौन है, जो मोटी सी लेडी है आर्ट के, क्या नाम है भाई उसका, इलाहाबाद बेस्ड है नहीं वो, दे हेल्प मी एट दैट पार्ट व्हेन आई वाज इन CBSE एंड प्रिपेयर्ड ए स्ट्रैटेजी फॉर दिस आर्ट एजुकेशन, हाउ इट कैन बी एवेल्युएटेड। अभी नाम याद आएगा, उसको बताएंगे हम उसको। कैन सो आर्ट एजुकेशन में वी नीड टू टेक इनटू अकाउंट द पोर्टफोलियोज होगा, चाहे 6, 7, 8 हो, 9th हो, of students art making process and students creative thinking process. All students need to have an individual folder of their artwork. We can maintain the digital folder also. आप रख सकते हैं, individual folder रख सकते हैं, all can be done. During evaluation, art work जो है can be exhibited. ये बड़ा अच्छा चीज़ कहा गया। Why not classroom में हम exhibit करा देते हैं और इसका मूल्यांकन करें, दूसरा बच्चा भी मूल्यांकन करे, own भी assessment करें, that we can do it actually. And students can be asked to express their feelings and process, how they have achieved this matter. So different way of, not a question paper दे दिया, कुछ question पूछ लिया, no. It has to be different in approach. Physical education में भी, it should be more on observation of students during field activities, drills and games. आपको मालूम होगा कि क्लास 10th में और 12th में जो है आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन जो लोकली असिस्ट होगा विथ द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर, लोकली असिस्ट बट प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर। फिजिकल एजुकेशन में रिटन टेस्ट हम दे सकते हैं टू नो द अबाउट द स्पेसिफिक गेम्स की रूल्स एंड रेगुलेशन, वेदर दे आर अवेयर ऑफ द स्पेसिफिक टूर्नामेंट्स और नॉट, डुरन कप किस में होता है, बेटन कप किस में होता है, बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। वी हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज एट दैट टाइम। आजकल बच्चों में मालूम नहीं क्यों नहीं ये चीज़ है, समझ में नहीं आ रहा। रिटन टेस्ट कैन बी यूज्ड, जैसे मैंने कहा, उस जानकारी करने के लिए। एंड वी कैन यूज स्कूल इवन डॉक्यूमेंट एनालिसिस भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कर सकते हैं, मेंटेन बाय टीचर्स एंड जर्नल्स मेंटेन बाय स्टूडेंट्स। इस स्टेज पर बच्चा सेल्फ एसेस भी करे, सेल्फ असेसमेंट इन फिजिकल एंड वाइवा बोसी भी हो सकती है। ये फिजिकल एजुकेशन का होगा। वोकेशनल एजुकेशन इसका भी होगा। स्टूडेंट मस्ट बी असेस प्राइमरीली थ्रू डेमोन्स्ट्रेटेड परफॉर्मेंस। यस, प्राइमरीली थ्रू डेमोन्स्ट्रेटेड परफॉर्मेंस होगा, बच्चा डेमोन्स्ट्रेट करेगा कि ये हम कर सकते हैं। और चूंकि इसका 10th में और 12th में आप जानते हैं इक्विवेलेंस होगा NSQF के भी, नेशनल स्कूल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो रिटन टेस्ट कैन ऑल्सो बी देयर इन वोकेशनल एजुकेशन। पोर्टफोलियोज हम मेंटेन कर सकते हैं, टीचर ऑब्जर्वेशन विल ऑल्सो बी देयर और स्टूडेंट कैन बी आस्क्ड टू असेस देयर एक्सपीरियंस। ये जो वोकेशनल रिटन फॉर्म बच्चा लिखेगा कि हाउ आई हैव अचीव, व्हाट इज माई एक्सपीरियंस, उसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं। इट्स अ गुड वे ऑफ डूइंग दैट इंस्टेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस एंड दिस थिंग्स। वोकेशनल एजुकेशन, सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट कैसे होगा, ये पूछते हैं हमसे कि हाउ दिस सेल्फ असेसमेंट कैन बी डन, कैसे हो सकता है। कोई ऐसी बात दिक्कत नहीं है। वी कैन प्रिपेयर इस क्वेश्चनियर, हम क्वेश्चनियर बना सकते हैं और बच्चों को हमने दे दिया, इसको फिलअप करके लाओ, अपने क्वेश्चनियर्स को बनाओ। स्कूल क्लास में ही कर सकते हैं, तो बच्चा कुछ छिपाना चाहे अपने पेरेंट्स से, उनको क्लास में ही कहिए कि इस क्वेश्चनियर को फिलअप करो, आपको दे दिया। कई बच्चे चाहेंगे कि अपने पेरेंट्स के बारे में या अपने फीलिंग्स के बारे में ना बताएं। हम इस क्वेश्चन जो बनाएंगे उस स्टूडेंट टू एक्सप्रेस देयर लाइक्स, डिसलाइक्स, कैसे फियर्स, होप्स, आइडियाज, एनी डिफिकल्टी, ये सब उसमें उसके क्वेश्चंस होंगे, बच्चा रिस्पॉन्ड करेगा। एंड स्टूडेंट बिसाइड्स गिविंग रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन अपने आप को इवेल्युएट भी करेगा, अपने आप करने दीजिए उनको, 2 ग्रेड देने दीजिए, गिव देम ऑल द फ्रीडम, डोंट आस्क देम कि यार तुमने ए क्यों रखा, तुमने बी क्यों नहीं रखा, तुमने सी क्यों नहीं रखा, आस्क देम ऑल द फ्रीडम ऑन ए 5-point स्केलिंग। ठीक है ना। हम पोर्टफोलियोज मेंटेन कर सकते हैं टू प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स सेल्फ एवेल्युएशन। ठीक है। पीयर असेसमेंट कैसे होगा? इट इज एन एक्सेलेंट फॉर असेसिंग इन टीम एंड ग्रुप बेस्ड एक्टिविटीज। एक्सेलेंट। बच्चा अपने दूसरे की जो है मूल्यांकन करेगा। अगेन एंड ग्रेडिंग, ये बच्चा कोऑपरेट, बी बिकॉज ऑफ हिज कोऑपरेशन, सी बिकॉज ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट एंड नॉट इंटरेस्ट इन कोऑपरेटिंग द अदर्स। बच्चा उसको करेगा, इसको देना पड़ेगा। इनिशियली दिक्कत आएगी, सोशल प्रोजेक्ट्स हम देंगे, बच्चा दूसरों की करेगा। अगेन इट कैन बी इनकॉर्पोरेट इनटू लर्नर्स पोर्टफोलियो टू प्रोवाइड एविडेंस ऑफ देयर लर्नर सोशल लाइफ स्किल्स। ओके फाइन। को स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज़ पे
अब ज़्यादा इसलिए आवश्यकता नहीं है बिकॉज यू नो द आर्ट एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन ऑलरेडी आर इन्वॉल्व इन करिकुलर एक्टिविटीज़, और इसमें जब बच्चों का हम मूल्यांकन कर रहे हैं तो मेनी ऑफ द कोर्स स्कॉलिस्टिक एरियाज के जो वैल्यूज़ है दैट ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड है, इसलिए आप इसमें स्कॉलिस्टिक एक्टिविटीज़ का ऐसे एज सच कोई आप इम्पोर्टेंस रह ही नहीं गई है, बट स्टिल सम स्कूल्स में आर्ग्यू दैट वी वांट टू मेक ए होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो वो कहेंगे कि हमारे कुछ लाइफ स्किल्स एरियाज है चला रहे हैं, बच्चे कैन बी इवेल्युएटेड ऑल बी ऑन ग्रेडिंग सिस्टम। कुछ एटीट्यूड्स और वैल्यूज़ हम चाहते हैं बच्चों में डेवलप हो, दैट कैन बी इवेल्युएटेड। एंड क्लब एक्टिविटीज़ हो सकता है, इंग्लिश क्लब है, साइंस क्लब है, मैथमेटिक्स क्लब है, उसमें भी हो सकता है जो कि हमारे उसमें आर्ट एंड फिजिकल एंड द वोकेशनल एजुकेशन में इंक्लूड नहीं होगा। ये बच्चा कर सकता है, स्कूल पर फ्रीडम है, बच्चों को रहना भी चाहिए। उसको ग्रेट थिंग्स, स्कूल्स डूइंग ग्रेट थिंग्स, दे कैन डू इट। इतना तो हमको क्रिएटिविटी बच्चे स्कूल को देना होगा। अगेन हमने कहा कि इन सब पर जो है कुछ स्कॉलिस्टिक एरियाज पर 5 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल एट मिडिल स्टेज एंड द 9 पॉइंट ग्रेडिंग एट द सेकेंडरी स्टेज। ओके, क्लास 9th एंड क्लास 11 में। अभी तो परख चर्चा कर रहा है कि क्लास 10th और 12th में हम एरियाज को कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे। परख इज एट ए लॉस हाउ टू पुट इट इनटू, देखते हैं परख क्या लाती है। ओके, एट क्लास 10 और क्लास 12 परख उस पर सोच रही है। असेसमेंट एट सेकेंडरी स्टेज भाई फिनिश करें हम, बहुत हो गया। रेगुलर समेटिव असेसमेंट होगा इस स्टेज पर, फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा क्योंकि बच्चों को बोर्ड एग्जाम देना है। फॉर्मेटिव असेसमेंट हम मल्टीपल टूल्स यूज़ करेंगे क्लास 9th और क्लास 11th में। क्लास 10th और 12th में क्या होगा परख पर देखना पड़ेगा, परख कम्स इनटू दिस थिंग्स। समेटिव असेसमेंट का डिज़ाइन इस विषय पर जो चेंज होना चाहिए। क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th में जो समेटिव एग्जामिनेशन होंगी आपकी स्कूल बेस्ड असेसमेंट, उसमें आपका डिज़ाइन में चेंज होगा। इट विल बी केस बेस्ड क्वेश्चन, पैराग्राफ देंगे, केस दे दिया, उसके बाद हमने क्वेश्चन पूछा तो बच्चा कंप्रीहेंशन है कि नहीं, फास्ट रीडिंग है कि नहीं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एसे टाइप क्वेश्चन अब इसमें आएगा, जोड़ दिया गया है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एसे टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चंस ऑन क्रिएटिविटी टू असेसमेंट ऑफ कॉम्पिटेंस। ये सेकेंडरी स्टेज पर आ रहा है, जो आ रहा है इसको बता रहा हूँ। अभी इमीडिएटली आपको इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ग्रेजुअली मैंने आपसे पहले ही कहा टेक स्मॉल स्टेप टूवर्ड्स योर गोल। ये बहुत सारी चीज़ आपको अरे कैसे होगा, कुछ नहीं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। टेक स्मॉल स्टेज, लेट अस लुक एट द प्रेप स्टेज फर्स्ट ऑफ ऑल, एक स्टेप तो दे। लेट अस लुक एट द प्रिपेयर द HPC अप टू द मिडिल स्टेज, 9th 10th बाद में बनाएंगे, लेट था, बट कंटिन्यू योर स्टेप डेली, रेगुलरली, रिलीजियसली। ओके, 9th 10th में हमने कहा कि बच्चे 3 लैंग्वेजेस लेंगे, 7 अदर सब्जेक्ट्स लेंगे। इस 10 सब्जेक्ट्स में से आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन से मैंने कहा विल बी लोकली असेस्ड with external examiner in place. Okay. 11th 12th में the बच्चा will take now, student will take 2 languages and 4 other subjects with the option of 5th subject भी। 7 subject का बच्चों का assessment होगा, all will be externally assessed। ठीक है ना, बच्चों को 7 सब्जेक्ट तक पढ़ना पड़ सकता है, 6 सब्जेक्ट तो लेगा ही बच्चा 11th 12th में, but they can go for 7 subjects also। All subjects will be externally assessed। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड आपको बनाना पड़ेगा, कोशिश करिए, इंट्रोड्यूस करिए आप टू प्रेप स्टेज तक, उसके बाद में ले जाइएगा मिडिल स्टेज एंड देन गो फॉर सेकेंडरी स्टेज। लेट अस स्टार्ट। होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड फॉर स्कूल बेस्ड असेसमेंट नीड्स टू बी रीडिजाइन कंप्लीटली। इट मस्ट बी ए मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट जो बच्चों के ग्रेट डिटेल में और यूनिकनेस ऑफ ईच लर्नर इन कॉग्निटिव, affective and psychomotor domain का disclosure, uniqueness of each learner. That's why we are developing the HPC because for us each learner is important. For us each learner must learn. That should be our mantra. हमने कई मंत्र आपको बताए हैं, ये चलेगा। It include holistic self assessment भी include होगा, peer assessment भी include होगा, और फिर मैंने और एक लाइन बढ़ाया, if feasible must include comments and observation by the parents also, parental assessment. Okay, if feasible मैंने कहा पहले हम इनिशियली धीरे धीरे चले, एक साथ करेंगे there is a chances of putting ourselves flat। तो HPC का फ्रेमवर्क क्या बनेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा। हमने एक आध स्कूलों का बना रखा है, दिया, उन्होंने हेल्प मांगा मुझसे, बनेगा ठीक है, 4 पेज का होगा बस। बहुत बड़ा ज़्यादा बनने से जो है
समझ में नहीं आता, पेरेंट भी नहीं पढ़ेगा। मेक इट ए ब्रीफ इज द मोस्ट स्मार्टेस्ट थिंग, ब्रीफ एंड लीन। फैटी कभी बहुत स्मार्ट नहीं होता है। तो इट मस्ट कंटेन स्टूडेंट प्रोफाइल विथ हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ स्टेटस, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंक्लूड होगा एचपीसी में, स्कॉलिस्टिक एरियाज, असेसमेंट इन को स्कॉलिस्टिक एरियाज भी मेंशन होगा, असेसमेंट होगा इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज, विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, लिटरेरी एंड साइंटिफिक स्किल्स, क्लब जो बनाएंगे साइंटिफिक उसमें होना चाहिए, क्रिएटिव, सेल्फ असेसमेंट इंक्लूड होगा। एक पेज का आधा चैप्टर हमने सेल्फ असेसमेंट का दे दिया, उसका हाफ चैप्टर हमने पेरेंट वो पीयर असेसमेंट रख दिया, उसका आधा पोर्शन अब एक ही पेज में पेरेंट असेसमेंट ला दिया। एक्सेप्शनल अचीवमेंट, इफ द बच्चा हैज रिप्रेजेंटेड योर स्कूल, हैज रिप्रेजेंटेड डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिविजनल लेवल और डन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवन एट द स्कूल लेवल, मस्ट बी मेंशन, उसका स्पेस होना चाहिए। सेपरेट एचपीसी होगा और फाउंडेशनल स्टेज, अगेन वन साइज फिट्स ऑल सिस्टम नहीं होगा, प्रिपरेटरी स्टेज का सेपरेट होगा, मल्टीपल स्टेज का सेपरेट होगा एंड सेकेंडरी स्टेज का सेपरेट होगा। बहुत हो गया है। देखिए, काम तो कठिन है, तभी तो करने लायक है। तो आसान काम तो सभी कर लेते हैं, समझ गए? इसी से आपसे एक्सपेक्ट है कि यस दैट्स व्हाई वी आर डूइंग। और याद रखिए एक चीज, ये सब बनाने में, भाई ये बच्चे जो हमारे 21st सेंचुरी के बच्चे हैं, हमारे आज जैसे नहीं हैं, तो बच्चों को चाँद सितारे तोड़ने दो, नहीं तो 2-4 किताबें पढ़कर वे हम जैसे हो जाएंगे, उनको हम जैसे मत बनाइए। ठीक है, थैंक यू।